A very good morning to everyone. Warm welcome to our distinguished guest and all the participants. हमारे विशिष्ट अतिथि और सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है. I, Parul Upreti, working as Manager Communication and Publication here at Jal Jivika, will be hosting this Aqua Talk session for you all. जल जीविका में प्रबंधन संचार और प्रकाशन के रूप में कार्यरत मैं पारुल उप्रेती आप सभी का स्वागत करती हूँ. I would like you to know that we are live connected with 30 farmers from Sangli, Maharashtra, who are watching this Aquatalk session. मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम सांगली महाराष्ट्र के 30 मत्स्य किसानों के साथ लाइव जुड़े हैं. हमारी टीम है जिन्होंने 30 मत्स्य किसानों के साथ हमें लाइव कनेक्ट किया है. मैं सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करती हूँ. This year, General Assembly of the United Nations with FAO proclaimed 2022 as International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture. This year will be an opportunity to celebrate the diversity of small-scale artisanal fisheries and aquaculture, highlighting the related innovation and to build and strengthen support and partnership at all levels. इस वर्ष FAO के साथ संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2022 को लघु स्तरीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है. यह वर्ष संबंधित नवाचार को उजागर करने वाले लघु स्तरीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि की विविधता का रूप में घोषित किया है. जश्न मनाने का अवसर होगा और हम सभी स्तरों पर समर्थन और भागीदारी का निर्माण और मजबूती करेंगे. इस एक्वा टॉक्स की यही थीम है. नाउ आई वुड लाइक टू टेल about our organization Jal Jivika. Jal Jivika was established in the year 2013 as non-profit organization. It is a registered social enterprise committed to the promotion of aquatic livelihood, securing food and nutritional security in rural India. The very essence of Jal Jivika lies in creating employment opportunities in the fisheries sector so as to reduce pressure on land as a resource. Jal Jivika has worked across different Indian states with more than 25,000 fish farmers to adopt better management system. Out of this, more than 4,000 women in Vidarbha region are earning livelihood through fisheries-based activities. We are instrumental in bringing more than 700 farmers as micro-entrepreneurs, fully engaged in fisheries, seed rearing and integrated farming. जल जीविका की स्थापना वर्ष 2013 में गैर लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी. यह एक पंजीकृत सामाजिक उद्यम है जो ग्रामीण भारत में जलीय आजीविका को बढ़ावा देने, खाद्य और पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है. जल जीविका का सार मत्स्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने में निहित है ताकि संसाधन के रूप में भूमि पर दबाव कम किया जा सके. जल जीविका ने बेहतर प्रबंधन प्रणाली अपनाने के लिए 25,000 से अधिक मत्स्य किसानों के साथ विभिन्न भारतीय राज्यों में काम किया है. इसमें से विदर्भ क्षेत्र में 4,000 से अधिक महिलाएं मत्स्य आधारित गतिविधियों के माध्यम से आजीविका कमा रही हैं. हम 700 से अधिक किसानों को सूक्ष्म उद्यमी के रूप में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसी के साथ टुडे फॉर दिस एक्वा टॉक सेशन वी हैव विद अस डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट Dr. R.S. Chauhan sir. I welcome you sir. Thank you. I would like to give a brief introduction. Sir is presently working as Dean College of Fisheries, Pantnagar. He has been Directorate Fisheries, Government of Uttarakhand, and ex-Additional Chief Personnel Officer, GB Pant University, Pantnagar. His specialization area is freshwater aquaculture, and his keen research field is phytobiotics incorporation in fish feed. He has more than 30 years of experience in this aquaculture field. I would like to welcome you, sir.
Thank you so much, Parul. I would request you to share your vision, experience, and knowledge on the same. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Parul, and other viewers listening to me. I am overwhelmed with the invitation from Jal Jeevika. I am fortunate that some of my students are working in Jal Jeevika, and I am also happy that they are doing well there. Today, it is a presentation from my side at Aquatalk, that is Aquatic Livelihood Collective, in commemoration of International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture 2022. So the topic of today's discussion is integrated fish farming, rationale and scope. So integrated fish farming, what is the rationale behind this? You see that in third world countries, the land mass is too fragmented. Land holding is too fragmented, and livelihood of maturity depends on agriculture. So multiple use of land is unabated. It is obvious. And small farmers, they are normally the resource poor, and they don't have much resource at their hand to go for some more remunerative venture, or to the venture that is capital intensive. They are not getting enough food to head their normal and other health activities. So their food lack in one or other constituent. And one option for this, for the economically and ecologically sustainable development of a farming system, is integration of agriculture and aquaculture and other farming activities. So normally the farmers, they are small or marginal. They have a small piece of land. If they go for more than one farming activity together, it is hoped that this will be more lucrative option for them. So sustainable development of any farming, sustainable development is what? It is that meets the need of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. So that is, it is enough for us as well as for the generations to come. The resource base is not degraded. That means rural people, normally they are consuming mainly staples, and these staples are high in carbohydrate but low in the micronutrients, sometimes even low in protein. So agriculture, whatever agriculture the farmer opts, it should focus on improving the dietary diversity in their produce. So farmers should have more than one produce at their hand, and that will only be possible if the farmers, they will have more farming options. Then integrated farming system is a nutrition sensitive approach because it includes crops, plants, farm animals, and fish. So there, the diversification of products is there, and this diversification helps in meeting out the nutritional requirement of the farmers. So this integrated fish farming, it will also help in some of the sustainable development goals that have been proposed by UN 2030 agenda. There are 17 sustainable development goals, and one is no poverty, zero hunger, then zero hunger,
good health and well-being, and one is related to fisher. 14, life below water. So this the integrated approach of farming will help in meeting out some of the sustainable development goals that have been proposed by UN. अभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। कोई भी सिस्टम सस्टेनेबल कब होता है? तो अगर हम एक्वाकल्चर सिस्टम की बात करें तो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर सिस्टम कौन सा होगा? व्हेन इट विल हैव ए प्रोडक्टिव potential, means we will have to take the technological and economical aspects into consideration. तो जो भी टेक्नोलॉजी होगी वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, मतलब इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए, वायबल होनी चाहिए, और टेक्नोलॉजिकली भी वायबल होनी चाहिए। एंड ऑन अदर कॉर्नर द टेक्नोलॉजी शुड बी सोशली रिलेवेंट, मीन्स वी विल हैव टू टेक वेरियस social aspects into consideration while opting or going for one or other type of aquaculture system. And on the third corner are the environmental aspects. So an sustainable aquaculture system will be when it is technologically and economically feasible, it is socially relevant, and it is also environmentally compatible. This integrated systems जो है वो इस पर खरे उतरते हैं। कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा आइडिया हो कि आज़ादी के बाद से किस तरह से पॉपुलेशन में, फूड प्रोडक्शन में और फिश प्रोडक्शन में चेंज हुआ है। तो 1950 में हमारे देश की आबादी 359 मिलियन थी, जो आज बढ़ के 1390 मिलियन हो गई है, यानी इसमें 387 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। फूड ग्रेन को अगर देखें तो उस समय फूड ग्रेन प्रोडक्शन 50.82 मिलियन टन था, जो आज 308.65 मिलियन टन है, यानी कि फूड प्रोडक्शन में 6.07 टाइम्स इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर आप फिश को देखेंगे तो इसमें इंक्रीज 0.75 मिलियन टन से 14.16 मिलियन टन, यानी 18.88 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। कहने का ये, दिखाने का मतलब मेरा ये था, हालांकि अगर आप एग्रीकल्चर की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो कम होते जा रहा है लगातार। 1950 से उस समय 55% के आसपास था, आज 20% के आसपास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिशरीज सेक्टर है या एक्वाकल्चर सेक्टर है, फिश फार्मिंग है, उसमें और प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन सेक्टर्स जो है उनके मुकाबले कहीं ज़्यादा ग्रोथ हुई है। हमारे देश में 20th लाइव स्टॉक सेंसस 2019 के अनुसार कैटल 192 मिलियन है, बफेलो 109 मिलियन है, शीप गोट्स हैं ओवर 200 मिलियन, पिग्स 9.06 मिलियन, पोल्ट्री 851 मिलियन और अदर लाइव स्टॉक 1.9 मिलियन। इतना बड़ा एनिमल रिसोर्स हमारे पास है देश में, और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो ऑर्गेनिक मैटर है, एक्सक्रीटा है, वो कितना होगा। इन मिलियंस एंड मिलियंस टन्स में वो एक्सक्रीटा होगा। वो कहाँ यूज होता है? ज़्यादातर क्रॉप्स में यूज होता है। पिछली स्लाइड में आपने देखा हमारा, तो अभी अरेबियन लैंड में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि जो अरेबियन लैंड उस समय थी 1950 में, उसमें बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, रोड्स में, बिल्डिंग्स में चली गई, लेकिन वैसे आप देखेंगे तो उसका एरिया बढ़ा है। 131.89 मिलियन हेक्टेयर्स था 1950 में, अभी 159। ये बढ़ा कैसे जब इतना चला गया? ये वो एरिया है बढ़ा जो हमने रिक्लेम किया है, जिसपे उस समय खेती नहीं हो रही थी, अभी धीरे धीरे करके खेती हो रही है। तो इस जो ये ऑर्गेनिक रिसोर्स है इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटिव मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइव स्टॉक, इसका ह्यूज रिसोर्स हमारे पास है,
जिसको सही से इस्तेमाल करने पे प्रोडक्ट्स फूड प्रोडक्शन में और अच्छी वृद्धि हो सकती है। कमिंग टू एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर क्या है? एक्वाकल्चर इज ये अंडर वाटर एग्रीकल्चर है, इट इज एक्वा फार्मिंग और अंडर वाटर एग्रीकल्चर। और नॉर्मली लोग कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन कंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल्ड, सिमुलेटेड, मैनिपुलेटेड कंडीशंस, thus it is underwater agriculture or aqua farming, and it is fastest growing food production sector in the world, higher than annual growth rate than agriculture। जैसे अभी पीछे देखा एग्रीकल्चर में ग्रोथ 3%, 4%, 3.5% ऐसे होता है, लाइव स्टॉक सेक्टर से भी ज्यादा है। और अराउंड 10 पिछले कितने सालों से, 20-30 सालों से 10% एनुअल ग्रोथ के अराउंड चल रहा है, थोड़ा इधर उधर होता है। और ये जो एक्वाकल्चर है, इसका मच ऑफ द डेवलपमेंट हैज अकर्ड इन एशिया, which also has the greatest variety of cultured species and systems। एशिया में जितना एक्वाकल्चर प्रोडक्शन वर्ल्ड में है अभी, उसका लगभग 89.9%, 90% के आसपास एशिया से आता है। और जो टॉप 10 फिश एक्वाकल्चर प्रोड्यूसिंग फिश प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, उसमें से 7 एशिया में ही है, और जो ज्यादातर साउथ एशिया में है या साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे चाइना के बाद इंडिया है, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, बांग्लादेश, ये सब कंट्री है जो टॉप 10 में आते हैं। तो इस कहने का मतलब ये है कि एक्वाकल्चर इज हब ऑफ द एशिया, इज हब ऑफ एक्वाकल्चर। और चूंकि यही हब है, इसलिए ज़्यादा स्पीसीज भी यही है, और डिफरेंट टाइप्स के जो सिस्टम है, कल्चर सिस्टम्स है, वो यहीं इसी एरिया में है। इसीलिए एशिया इज परसीव्ड एज होम ऑफ एक्वाकल्चर। इट हैज लॉन्ग हिस्ट्री इन सेवरल एरियाज ऑफ द रीजन। चाइना में अभी 4,500 साल पहले से लोग फिश कल्चर जानते थे, हमारे देश में भी लगभग 2000 साल से जान रहे हैं। तो नॉलेज, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो वाइड स्प्रेड है इस एरिया में। फर्दर मोर, जो इंटीग्रेशन ऑफ लाइव स्टॉक एंड फिश फार्मिंग इज बेस्ट एस्टेब्लिश इन एशिया। बहुत सारे कंट्रीज में फिश लाइव स्टॉक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम डेवलप हुए हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग है क्या? व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग? इंटीग्रेटेड फार्मिंग is commonly and narrowly equated with direct use of fresh livestock manure in fish culture। ये सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है कि जो भी लाइव स्टॉक मैन्योर है उसको हम फिश कल्चर में यूज करते हैं, यानी 2 सिस्टम, वन एनिमल हस्बेंड्री सिस्टम एंड वन एक्वाकल्चर सिस्टम का इंटीग्रेशन है। हाउएवर देयर आर ब्रॉडर डेफिनेशंस, बहुत सारी डेफिनेशन लोग अपने हिसाब से देते हैं। जो मैं कहता हूँ, दैट इज इंटीग्रेटेड एक्वा फार्मिंग इज डाइवर्सिफाइड एंड कोऑर्डिनेटेड वे ऑफ फार्मिंग। इट इज ए कोऑर्डिनेटेड वे ऑफ फार्मिंग, एंड डाइवर्सिफाइड है और कोऑर्डिनेट। डाइवर्सिफाइड मीन्स ए नंबर ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स आर इन्वॉल्व। फार्मिंग सिस्टम जैसे एग्रीकल्चर सिस्टम इज वन, एक्वाकल्चर इज अदर, एंड देन एनिमल हस्बेंड्री इज अदर। एनिमल हस्बेंड्री में कई सब सिस्टम हो सकते हैं लाइव स्टॉक के हिसाब से, कैटल, डक्स, पिग और पोल्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे एग्रीकल्चर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह हो सकते हैं। एक्वाकल्चर में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फिशेज या डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिशेज हो सकती है। सो दिस इज इंटीग्रेटेड एक्वा फार्मिंग, एक डाइवर्सिफाइड और कोऑर्डिनेटेड तरीका है फार्मिंग करने का। किस लिए? फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल आइटम्स इन फिश फार्म्स विद फिश एज मेन प्रोडक्ट। हमारे हिसाब से, क्योंकि हम फिशरी साइंटिस्ट हैं, तो हमारे हिसाब से एक जो मेन कंपोनेंट है वो फिश फार्मिंग है, उसके साथ और कई सारे फार्मिंग सिस्टम कोऑर्डिनेटेड। इसमें होता क्या है? द आइटम्स प्रोड्यूस्ड आर आइदर यूज्ड एज सोर्स ऑफ फीड और फर्टिलाइजर। जो भी प्रोड्यूस होगा वो या तो फीड के रूप में यूज होगा, फूड के रूप में यूज होगा, या फर्टिलाइजर के रूप में यूज होगा, या एडिशनल इनकम के लिए यूज होगा। और इंटीग्रेशन में अगर डायरेक्टली ऑन साइट होगा तो डायरेक्ट होगा, और इनडायरेक्टली थ्रू ऑफ साइट अपॉर्चुनिटी। ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है, जहाँ पे दोनों
जो भी इंटीग्रेटेड सिस्टम्स है, 2, 3 या 4, वो सब एक साथ हैं, क्लोजली इंटीग्रेटेड, या कोई सिस्टम एक दूर है, वहाँ से वो फिर उसका प्रोड्यूस ला के ट्रांसपोर्ट करके दूसरे में यूज होता है। Philosophically and practically, it is better to consider waste as misplaced resource. बहुत जगह हम लोग वेस्ट 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 सुनते हैं, ये वेस्ट है, लाइव स्टॉक वेस्ट। मैंने लाइव स्टॉक वेस्ट नहीं कहा, मैंने लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा कहा। वेस्ट दुनिया में कोई चीज नहीं है, जो भी वेस्ट है वो मिसप्लेस्ड रिसोर्स है, तो misplaced resource, nothing is waste, because everything has some or other type of value, whether manurial, whether mineral, whether food point of view or others. What are the merits of such type of system, integrated systems? These are artificial ecosystems with no waste. Waste कुछ है ही नहीं, एक का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में. There is efficient recycling of organic material और assured profitable production of fish and other produce. इसमें क्या है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो ऐसा रिस्क है किसान को, वो मिटिगेट हो जाता है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम, अगर एक में कुछ कमी होती है दूसरा उससे कंपनसेट कर सकता है. एंड देयर इज ओवरऑल रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ फिश प्रोडक्शन. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज फार्मर्स को क्या है, अगर केवल मोनोकल्चर सिस्टम रखता है फार्मर, तो उसके पास प्रोड्यूस लिमिटेड होता है, 1 या 2, तो हमेशा वो जैसे क्रॉप करना है तो 4-5 महीने बाद उसको पैसा मिलता है, फिश करना है अकेला तो 7-8 या 10 महीने बाद पैसा मिलना शुरू होता है. अगर उसके पास लाइव स्टॉक है, क्रॉप है, तो कोई ना कोई प्रोड्यूस, जैसे मिल्क है, एग है, तो कोई ना कोई फिर फिश है और सीड्स है, ग्रेन्स है, तो बीच बीच में पैसा मिलता रहता है, या रेगुलर पैसा किसान को मिलता रहता है. और यही प्रोड्यूस जो उसके अपने हैं, अपने ना हो और मार्केट से खरीद के लाता है, तो मार्केट में ये प्रोड्यूस महंगे मिलते हैं, और अगर अपने हैं तो वो कंपैरेटिवली कम कॉस्ट में अवेलेबल रहते हैं. ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होता है. इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज है. अबेटमेंट टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, बहुत इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर, अगर ये सब हम जाने देंगे ओपन में, तो फिर वो जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है उससे ही बचाव होता है. एनहांसमेंट ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंड इट इज ए सस्टेनेबल सिस्टम, दैट आई हैव डिस्कस ऑलरेडी. किस तरह से डायनामिक्स है, इस 3 सिस्टम मैंने यहाँ दिया है. दिस इज ए AAA सिस्टम, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री सिस्टम, AAA. तो इसमें आप देखें, या इधर क्रॉप फार्मिंग है, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, फिश फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री. 3 सिस्टम है, इनका इंटीग्रेशन किस तरह से होता है, या जो रिसोर्स है उसका रिसाइकलिंग किस तरह से होता है, यूटिलाइजेशन किस तरह से होता है. तो ये सभी सिस्टम में सोलर एनर्जी, रेनफॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, दे टेक फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वेदर प्लांट्स और वेदर एनिमल्स और fish. This in crop farming, the produce is grains, fodder. तो ग्रेन्स कहाँ यूज होंगे, एनिमल हस्बेंड्री में यूज होंगे, या ग्रेन्स फिश फीडिंग के काम आएंगे. फॉडर वो एनिमल हस्बेंड्री में जा सकता है, फॉडर फिश फार्मिंग में जा सकता है. और एनिमल हस्बेंड्री से हमें क्या मिलता है, मीट, मिल्क, एग और ऑर्गेनिक मैन्योर. तो ये डिपेंड करता है मीट, मिल्क, एग की कौन सा इंटीग्रेशन हमने लिया है, किस लाइव स्टॉक का लिया है. ऑर्गेनिक मैन्योर यहाँ से फिश पॉन्ड में भी यूज होता है और क्रॉप्स में भी यूज होता है. ऐसे फिश फार्मिंग है, फिश फार्मिंग से क्या मिलेगा, फिश, और जो हम ह्यूमस मिलता है, जो पॉन्ड ड्राई करने के बाद जो सिल्ट है या ह्यूमस है, उसको दैट वी कैन टेक यूज ऑफ एनरिचिंग द सॉइल, फ्लावर पॉट्स, वेजिटेबल फील्ड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. या फिश को कभी कभी अगर कोई ट्रैश या इस तरह का है, तो उसको भी इधर एनिमल हस्बेंड्री में, पर्टिकुलरली पोल्ट्री वगैरह में भी यूज कर सकते हैं. दिस इज हाउ
the recycling of produce of one system to other takes place. I request everyone to mute themselves, please. This is potential outcome of the different integration. Here I have given two systems, 1 and 2. These are separate standalone operations. So there is no integration here. Here there is integration, and integration at the level, at equal level. That same benefit is accrued to one system from other system. Here one system may the level of benefit of one component, and on the other either it is a neutral effect or less effect. And here there is maybe a small decline in one component due to other, but increase in other is much larger, that can compensate the decline in the other. So this is how the intensity of integration may be there in two components. These components may be 2, 3, 4, like that. What are the key issues in integration? आपको जो भी फार्मर अडॉप्ट कर रहा है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, उसको ये देखना होगा कि जो स्पीसीज उन्होंने ली है, वेदर दे आर suitable for feeding on natural food that is generated by the livestock excreta or livestock waste. क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग बेस्ड सिस्टम है, जितना भी इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग सिस्टम है, तो इसमें ऐसी स्पीसीज ही होंगी जो उस फूड पे सब्सिस्ट करती हों जो हम ये ऑर्गेनिक इनपुट से आता है, यानी कि नेचुरल फूड पे जो रहती हों। जो आर्टिफिशियल फीड पे डिपेंडेंट हो वो फिश इसमें सुटेबल नहीं होंगे। फिर लाइव स्टॉक मोनोगैस्ट्रिक है, रूमिनेंट्स है, किस तरह का है, मतलब पिग्स हैं या कैटिल है, उसी हिसाब से इंटीग्रेशन होगा। दैट पर्टिकुलरली फॉर देयर शेल्टर, पर्टिकुलरली फॉर देयर नंबर्स। और जो वेस्ट है वो अगर कहीं से हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइट है, इनडायरेक्ट है, तो क्या कॉस्ट इफेक्टिव होगा ट्रांसपोर्टेशन, ये भी देखना होगा। कोई ऐसा लेजिस्लेशन तो नहीं है जो वेस्ट के प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी है, वो भी फार्मर को देखना होगा। लाइव स्टॉक वेस्ट की कीमत अगर हम कहीं से लाते हैं तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और क्या लो एम्बिएंट टेम्परेचर पे लेस देन 18 डिग्री पे वेस्ट फीड एक्वाकल्चर संभव है कि नहीं है, ये भी देखना होगा। नॉर्मली ये वार्मर वाटर में होता है, और फिश कल्चर ऑलरेडी एस्टेब्लिश ऑन कन्वेंशनल फीड और सिस्टम्स पे जो है उनको स्विच ओवर अगर करना है हमें ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग बेस्ड सिस्टम पे, तो क्या चीज़ें करनी होंगी, ये इशू है जो फार्मर ने। सो अभी हम लोगों ने देखा कि जितना भी एनिमल एक्सक्रीटा है डिफरेंट लाइव स्टॉक का, उसमें काफी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस है और ऑर्गेनिक मैटर है। तो इसी का उपयोग जो पॉन्ड फार्मिंग में या इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग में होता है। पॉन्ड फिश फार्मिंग जो है उसका जो बेसिक है वो यही है कि जो सॉयल और वाटर में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको माइक्रो वेजिटेशन या मैक्रो वेजिटेशन लेती है और ग्रो करते हैं, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन या एल्गी या इस तरह के जो छोटे वेजिटेशन हैं वो प्रोड्यूसर्स के हैं, और उनके ऊपर फिर जूप्लैंक्टन या फाइटोप्लैंक्टोफेगस फिश, फिर जूप्लैंक्टोफेगस फिश, ये सब होती है। तो पॉन्ड फिश फार्मिंग का जो बेस है वो ऑर्गेनिक इनपुट है। तो ऑर्गेनिक इनपुट यहाँ पे हम लाइव स्टॉक मैन्योर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने अपने इंस्ट्रक्शनल फिश फार्म में पंतनगर में
पंतनगर में कुछ ट्रायल किए हैं। एक ट्रायल हमने डक फिश फार्मिंग पे किया, जहाँ पे हमने 2 पॉन्ड लिए, मतलब डक जिसमें दोनों में मछली डाली, और मछली जो है वो 10,000 नंबर्स पर हेक्टेयर के हिसाब से डाली थी, जिसमें कतला 20%, सिल्वर कार 15%, रोहू 25%, कॉमन कार 15%, मृगल 15% और ग्रास कार 10%, इस हिसाब से डाली। और इस पे हमने 600 डक्स तक रखी। ये खाकी कैम्बल डक थी, जो डुअल टाइप डक है, जिसकी ग्रोथ भी ठीक होती है और एग्स भी एक ले में एक बार अंडा जब शुरू करती है तो लगभग 3 अंडा देती रहती है। डक्स के लिए इंडियन रनर या और दूसरी जहां संभव हो देसी जाति भी इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। अगर मीट टाइप की डक चाहिए तो फिर व्हाइट पेकन या आइलेसबरी लेते हैं। और ये डक्स जो है इनको 5 फीमेल के साथ 1 मेल रखते हैं, और उसमें 0.3 से 0.5 स्क्वायर मीटर स्पेस एक एडल्ट डक को चाहिए होता है। तो ये डक्स जो है वो, इसमें हमने ये देखा जो इंटीग्रेशन किया था उसमें डक फिश पॉन्ड में और फिश पॉन्ड में जिसमें डक नहीं थी, दोनों में जो पानी के क्वालिटी के पैरामीटर्स थे, पीएच, वो 7.3 से 8.5 के बीच में थे दोनों में। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी 4.5 से 8 तक थी। फ्री कार्बन डाइऑक्साइड 1.5 से 2 ppm तक थी। एल्कलिनिटी भी 95 से लेके 145 तक थी। और प्लैंक्टोनिक वॉल्यूम भी दोनों में देखा गया तो डक फिश पॉन्ड में प्लैंक्टन वॉल्यूम ज्यादा था फिश पॉन्ड के मुकाबले। डक हाउस 40 फीट इंटू 10 फीट इंटू 10 फीट साइज का था, जो स्प्लिट बैम्बू से बना था, और ये तालाब के लगभग 60 सेंटीमीटर ऊपर सरफेस के ऊपर था। इसका 2/3 पार्ट पॉन्ड के वाटर सरफेस के ऊपर था और 1/3 पार्ट डाइक पे था। जो डक हाउस का बेस था, वो फ्लोर था, वो स्प्लिट बैम्बू से बना था। इन स्प्लिट बैम्बू के बीच में 1 से 2 सेंटीमीटर का स्पेस था, जिससे जो भी फीकल मैटर डक्स का था वो डायरेक्टली पॉन्ड में चले जाए। रूफ ट्रांसल्यूसेंट प्लास्टिक शीट की बनी थी, और इस डक हाउस को रोज वॉश किया जाता था पॉन्ड वाटर से, ताकि जो भी लेफ्ट ओवर डक एक्सक्रीटा है वो पानी में चला जाए। इस डक हाउस में फीडर और ड्रिंकर दोनों साथ साथ रखे जाते थे। फीडर में दाना रखते हैं। डक को एक्चुअल में ये दाना माश के रूप में होता है, दलिया के रूप में। डक को सूखा दलिया खाने में दिक्कत होती है, वो अपनी बीक में ये राशन लेती है और उसके बाद पानी लेती है और उस पानी से निगलती है फीड। इसलिए जो भी ड्रिंकर रखे जाएं वो फीडर के पास हमेशा पानी से भरे होने चाहिए। जो ये डक्स को 6 से 7 वीक के बाद पानी में जाना अलाउ करते हैं, और फीड इनको लगभग 80-100 ग्राम एक डक एडल्ट डक को एक दिन में देते हैं। ये जो स्पिल ओवर फीड का हमने क्वांटिफिकेशन किया, तो ये जो फीड है वो स्टार्टर 3 स्टेज होती हैं डक की। स्टार्टर में 21% प्रोटीन का मास देते हैं। ग्रोअर का मतलब है कि 6 से
20 हफ्ते तक लगभग, और लेयर 20 हफ्ते के बाद 22 या 23 हफ्ते में अंडा देना शुरू करती है, उनको लेयर कहते हैं। उनको 18% प्रोटीन देते हैं। जो हमने ये स्टडी किया कि कितना फीड डक पॉन्ड ओरिजिन पॉन्ड से लेती है। तो जब इसके क्रॉप और ग्लैंडुलर स्टमक और गिजर्ड जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं, इसमें फूड मैटर देखा गया, तो पॉन्ड ओरिजिन का जो फीड था वो लग 54% फीड ऐसा था जो पॉन्ड ओरिजिन से था, जिसमें कोई टैडपोल है, इंसेक्ट है, या सॉफ्ट वेजिटेशन है, इस तरह का। और जो लेफ्ट ओवर फीड था जो डक गिरा देती है, वो करीब 14.5% स्पिल ओवर कर देती है डक, क्योंकि जो फीड का फीडर है वो डक हाउस में रखा है, जो गिर जाता है वो क्वांटिटी जितना दाना देते हैं उसका लगभग 14.5% वो स्पिल ओवर हो जाता है, वो डायरेक्ट तालाब में चला जाता है, जिसको मछली खाती है। और इसके अलावा स्टोन्स एंड अदर इस तरह का सैंड वगैरह वो 22%, यानी 22% और 54%, 76% जो आंत में पूरी एलिमेंट्री कैनाल में दाना था डक का, उसका 76% वो था जो तालाब से आता है। यानी जितना फीड तो 140 ग्राम खाती है मछली, तो उसका आधे से ज्यादा फीड वो तालाब से मिल जाता है, बाकी आधा ही हमें बाहर से देना पड़ता है। जो दाना है इसका इसमें मुख्य रूप से गेहूं का दलिया होता है, ज्वार, राइस पॉलिश, सोयाबीन केक, मस्टर्ड केक, मिनरल मिक्सचर, और जो लेयर्स हैं उनके लिए 4% लाइमस्टोन भी देना होता है, जिससे एग सेल बनने में मदद होती है। एक और हमने स्टडी की कि एक डक कितना एक्सक्रीटा एक दिन में देती है, तो उसका वजन लगभग 145 ग्राम पर डे आया, और टोटल डक का एक साल में जो आता है वो 600 डक से एक साल में 1 हेक्टेयर तालाब में 230 क्विंटल एक्सक्रीटा डक तालाब में देती है, जिसमें अगर हम नाइट्रोजन देखें तो वो 314 किलो 314 केजी नाइट्रोजन इस एक्सक्रीटा से एक साल में तालाब में जाती है। 228 केजी फास्फोरस जाता है, 83 केजी पोटेशियम जाता है, और 723 केजी एश, और 2881 केजी ऑर्गेनिक कार्बन जाता है। तो ये समझ ले कि आप तालाब की जो जमीन सॉयल है वो बहुत अच्छे से एनरिच होती है ऑर्गेनिकली, और जितनी नाइट्रोजन और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट नॉर्मल होती है तालाब में, वो पूरी इससे मीट आउट हो जाती है। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट लगभग 300 केजी के आसपास होती है साल भर में, और फास्फोरस 200 केजी के आसपास। तो वो उतना इतने 600 डक के इंटीग्रेशन से मिल गया। ये थोड़ा ज्यादा है, एक्चुअल में इंटीग्रेशन 300 डक से शुरू होता है। ये मैनेजमेंट, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट था, फार्मर्स उस लेवल पे 600 रखने में उनको दिक्कत होगी, तालाब में के वाटर क्वालिटी मेंटेन में थोड़ी करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए मेरी सलाह है कि जो फार्मर्स हैं वो 300 से 500 के बीच में नंबर डक्स का रखें। हमने कंडीशन फैक्टर भी देखा फिश का, वो सभी का डक फिश पॉन्ड में 1 के ऊपर था, ऐसी फिश पॉन्ड में भी था, यानी कि फिश की नॉर्मल हेल्थ पे कोई असर डेट्रीमेंटल इफेक्ट जो है वो इस इंटीग्रेशन का, डक का फिश से इंटीग्रेशन का नहीं था। प्रोडक्शन जब देखा तो चूंकि ये इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास डक्स छोटी थी, और जब एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ तो वो ले में नहीं थी, इसलिए एग्स नहीं है। फिश का प्रोडक्शन हमारा जो 1 हेक्टेयर में आया वो 5039 केजी आया,
और डक का वेट 796 केजी आया। और जो फिश पॉन्ड था जिसमें डक्स नहीं रखी थी, उसमें फिश का वेट 4715 केजी आया। तो दोनों कंपैरेटिव अगर देखेंगे तो फिश पॉन्ड में 4715 केजी और इससे लगभग 300 केजी ज्यादा है, 5039 केजी वो डक फिश पॉन्ड में आया। और साथ में करीब 1800 केजी डक मीट भी मिला। यानी ये फायदा है कि अगर किसान इंटीग्रेशन नहीं करता है लाइव स्टॉक के साथ या डक के साथ, तो उसको मछली भी थोड़ी कम मिलती है और 1800 केजी डक का मीट भी कम मिलता है। यानी इंटीग्रेशन से इनकम एनहांस होती है। हमने दूसरे एक्सपेरिमेंट में ऐसी डक्स भी रखी थी जो एग्स देती थी। उसमें हमारे पास लगभग 72,000 एग्स पर ईयर आए थे 1 हेक्टेयर में, और उसमें हमने देसी डक रखी थी जो 300 1 हेक्टेयर में 300 की संख्या में रखी गई थी। इसी के साथ दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोगों का पोल्ट्री के साथ था। उसमें हमने जो मछलियां रखी थी वो एक हेक्टेयर में 8,925 और चिकन जो रखे थे वो 595। जो चिकन था उसकी वैरायटी बॉब कॉक चिकन था, बॉब कॉक, BOBCOC के। जो घर था वो बिल्कुल जैसा डक हाउस का था, स्प्लिट बैम्बू का बना हुआ, इसमें स्प्लिंटर्स बॉटम में और फीडर ड्रिंकर उसी तरह से थे। इस घर में केवल ये फर्क है, चिकन में हम ब्रायलर प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, क्योंकि ब्रायलर लगभग 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन या 35 दिन के आसपास तक ही होता है 0 डे से, जो कि बहुत ह्यूमिडिटी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इसलिए ब्रायलर प्रोडक्शन का इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। जो इंटीग्रेशन करते हैं चिकन में वो लेयर्स का करते हैं। तो जब भी आप पोल्ट्री के साथ चिकन के साथ इंटीग्रेट करें फिश को, तो बड़े साइज का लें, या आप 12 वीक, 14 वीक, 15 वीक इस साइज का की मुर्गा लें और उनको रखें। और जो डक का, जो पोल्ट्री का हाउस होता है चिकन का, उसको 2 तरह से आप रख सकते हैं। या तो डाइक पे वो हाउस सिस्टम में रख सकते हैं, लिटर सिस्टम में, या फिर अगर इस तरह के डक हाउस टाइप के हाउस में रखना है तो उसको तालाब के पानी से इतना ऊपर रख, लगभग 1.5 मीटर ऊपर रखेंगे। जैसा डक हाउस लगभग 60 सेंटीमीटर ऊपर था, वो तो डाइक पे ही था बिल्कुल। इसको डाइक से ऊपर और 1 मीटर ऊपर और पानी के ऊपर रखेंगे, ताकि पानी के ह्यूमिडिटी का ज्यादा असर ना पड़े। कॉम्बिनेशन 6 फिश का था, इसमें भी सेम परसेंटेज में, कतला 20% और मृगल कॉमन कार 15% रोहू 25%, सिल्वर कार 15%, ग्रास कार 10%। और इसमें भी मछली की हेल्थ और पानी की क्वालिटी पे कोई फर्क ऐसा नहीं दिखाई दिया जो मछली की हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो या मछली की डेथ हो जाए। और इसमें हमने देखा कि जो पोल्ट्री है वो लगभग 19.6% स्पिल ओवर करती है। तो जो दाना मुर्गी को देते हैं उसका 19.67% वो गिरा देती है, बिखर जाता है वो, जो डक हाउस से फिर तालाब में चला जाता है, जिसको मछली खाती है। एक पोल्ट्री जो एवरेज है वो 98 ग्राम एक्सक्रीटा रोज देती है एडल्ट पर, जो कि डक के केस में लगभग 145 ग्राम था। तो डक का एक्सक्रीटा गीला होता है, वाटरी होता है, और पोल्ट्री में, चिकन में जो है वो ड्राई होता है। तो ये 98 ग्राम एक डक देती है एक्सक्रीटा। 595 डक के हिसाब से जब हमने टोटल क्वांटिफाई किया तो ये
186 क्विंटल आता है, 186 क्विंटल आता है, ठीक है। तो 186 का मतलब है कि वहां पे डक्स में 230 क्विंटल आया था, जिसमें जब हमने नाइट्रोजन फास्फोरस देखा था तो 314 केजी नाइट्रोजन और 220 केजी फास्फोरस आया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी काफी क्वांटिटी में नाइट्रोजन और फास्फोरस आता है। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं, ये हमने क्वांटिफिकेशन किया तो 186 क्विंटल एक्सक्रीटा पोल्ट्री का एक साल में आता है और पर बर्ड 97.9 ग्राम एक्सक्रीटा है। तो इसको जब नाइट्रोजन और फास्फोरस देखा हमने कि कितना है, तो नाइट्रोजन 326 केजी आता है एक साल में और फास्फोरस 223 केजी, यानी इतना ही लगभग वो डक के केस में भी आया था। तो इसका मतलब ये है कि आप इंटीग्रेशन अगर डक का 500 या उससे ज़्यादा करते हैं तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस will be added to fish pond for sufficient production of natural food material for consumption of the stocked fish around 9,000 10,000 like that. इसमें फिश प्रोडक्शन आप जब हमने देखा पोल्ट्री में तो इंटीग्रेशन के साथ हमें 5,229 केजी फिश मिला। अभी डक में हमें 5,039 केजी मिला था और चिकन 1363 केजी, जो डक मीट हमें लगभग 1800 केजी मिला था। और यहाँ पे चूंकि ये डिले में थी, जो बॉब कॉक हम लाए थे 20 वीक्स का लाए थे, वो एग्स 86,547 एग भी मिले। और जब इसके अगेंस्ट जब फिश पॉन्ड में हमने केवल जिसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं था उसमें देखा तो हमारा प्रोडक्शन आया था लगभग 47 क्विंटल, 4,700 सम केजी आया था। तो इससे ये साबित हो गया कि अगर हम फिश के साथ चाहे डक का करें चाहे पोल्ट्री का करें, हमें उससे ज़्यादा फिश मिलती है, साथ में काफ़ी अमाउंट में डक मीट या पोल्ट्री मीट मिलता है और साथ में एग्स भी मिलते हैं। ये देखिए कंडीशन फैक्टर भी सबका 1 के ऊपर है, यानी इसमें फिश की हेल्थ पे कोई बुरा असर इस इंटीग्रेशन से नहीं पड़ता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि बीच में गैप हो गया था, आई वांट टू शो यू द कैसा स्ट्रक्चर था पॉन्ड और हाउस का। तो भी यहाँ पे हमारा नेट चला गया था। इसके बाद ये हमारा फिश फार्म है पंतनगर का, इंस्ट्रक्शनल फिश फार्म, जहाँ पे हमने ट्रायल किए हैं। ये डक हाउस का इनर व्यू है। तो ये आप देख रहे होंगे ये सब बैम्बू का बना है और ये बैम्बू स्प्लिंटर्स है जिसमें स्पेस है। ये ड्रिंकर है जिसमें, ये फीडर है जिसमें दाना रखा हुआ है, और ये ड्रिंकर है जिसमें पानी है, और ये फीडर है जिसमें ऊपर ये पाइप लगा हुआ है। ये मेल फीमेल, ये मेल है और ये फीमेल है। ये आप नेक के कलर से और ये टेल से पहचान सकते हैं इस तरह से। ये मेल फीमेल देखिए दोनों, ब्लैक इज मेल और ये फीमेल। ये डक हाउस का व्यू है पूरे का, अगर आप देखेंगे ऐसे इरेक्टेड था। ये डाइक पे 1/3 पार्ट इसका डाइक के ऊपर है और 2/3 इसका, जैसे 10 फीट है तो लगभग 3 फीट ये डक पे डाइक पे था बंधे पे, और 6 से 7 फीट ये तालाब के ऊपर है। ये इन बैम्बू स्टेक्स पे बना हुआ है और ये इस वाटर सरफेस से लगभग 60 सेंटीमीटर ऊपर है। और ये डक्स आप इधर से रैंप है, ये दिन में इन रैंप से तालाब में आ जाती है और शाम को वापस
चले जाते हैं। डक का फायदा ये है कि देखिए पानी में आपको थोड़ा टर्बुलेंस दिखाई दे रहा होगा, जिससे वाटर सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ जाता है, तो पानी ऑक्सीजन का डिसोल्यूशन एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होता है, इसीलिए इन्हें लाइव एरिएटर भी कहते हैं। ऐसे तो लाइव फीड फैक्ट्री भी कहते हैं ऐसे लोग कुछ, क्योंकि ये सभी में जहाँ जहाँ जाती हैं वहीं पे वो एक्सक्रीट करती हैं, तो पूरे तालाब को फर्टाइल रखती हैं। चिकन और डक में एक फर्क ये है, डक लगभग 95% एग्स रात में देती है, तो रात में ये हाउस में रहती है, तो आपको एग कलेक्शन में ब्रैकेज ज्यादा नहीं होता है। चिकन में क्या है, वो 24 घंटे अंडा देते हैं, तो वो चाहे जहाँ जहाँ भी जाएंगे, बंधे पे कहीं तालाब में गिर जाएगा, तो ब्रैकेज भी या लॉस ज्यादा होता है एग का। ये एक और व्यू है जो घूमती है, ये फीडर है देखें, और ये ड्रिंकर, ये छोटे हैं, 4-5 वीक के हैं जो खा रहे हैं। पोल्ट्री का ये है, ये बॉबकॉक वैरायटी है पोल्ट्री की। तो इन सारांश में हम कह सकते हैं कि अगर फार्मर फिश के साथ किसी और फार्मिंग सिस्टम का, यहाँ पे मैंने केवल लाइव स्टॉक डिस्कस किया है, उसमें भी केवल बर्ड्स, चिकन एंड डक, इसमें मैंने कैटल पिग या और कोई ऐसा डिस्कस नहीं किया है, बेस वही है। तो इससे क्या है कि फार्मर को का प्रोड्यूस का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, उसको फिश मिल रहा है, एग मिल रहा है, मीट मिल रहा है, और हमेशा कुछ ना कुछ पैसा फार्मर पे आ रहा है। दूसरे आपने देखा कि प्रोडक्शन भी दूसरे सिस्टम से, जो फिश फार्मिंग है केवल सिंगली, उससे कुछ ज्यादा है। तो थैंक यू, I finish my talk here, and I invite, if there are some queries or somebody wants to interact with me, welcome. Thank you. Thank you so much, sir. Great information indeed. अभी मैं सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करूंगी कि वे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी हमारे साथ फार्मर्स जुड़े हैं, 30 फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनकी कुछ क्वेरीज हो तो वो भी पूछ सकते हैं। वी आर ओपन फॉर दी क्वेश्चन आंसर सेशन। चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सांगली से 30 फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हैं, और भी कोई प्रतिभागी सवाल करना चाहे तो पूछ सकते हैं। हेलो जी, हेलो, मैं पनवेल से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़। जी। ये जो आपने खाकी कैम्बेल और वो सब डक दिखाए, उनके बच्चे कहाँ से मिलेंगे? ये आपको हैसर घट्टा से मिलेंगे। यूपी में भी उपलब्ध है। ये आपको हैसर घट्टा बंगलौर से मिलेंगे। बंगलौर के पास एक जगह हैसर घट्टा है। जापान या सिंगापुर। आप लोग एक एक करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन ये था कि 2-3 महीने पहले हम लोग बिहार गए थे फील्ड विजिट में। वहाँ एक फार्मर ने डक फार्मिंग कर रहे थे फिश के टैंक के साथ में। उनको प्रॉब्लम ये आ रही थी कि डक जो है उसके किनारे के सारे बंड को वो उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे थे, खोद के सारी मिट्टी निकाल देते थे। तो वो काफी ज्यादा जो है मिट्टी का वहां पे फैलाव हो गया था। तो ये इसको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, डक का क्या है कि डक का मैंने आपको दिखाया, वो लगभग 70% के ऊपर अपना फीड रोज का जो दाना है वो तालाब से लेते हैं। तो वो जो वर्म है, इंसेक्ट है, या टेडपोल है, या सॉफ्ट वेजिटेशन है, हरी भरी घास, उसको खाने के लिए
वो बीक से वो बंधे को तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये अभी वैसे तो नॉर्मल फिश फार्मिंग में भी क्या है कि बताया जाता है कि आप साल भर में, संभव नहीं है तो 2 साल में आप तालाब को खाली करें, ड्राई करें, फिर दोबारा से उसमें चूना खाद जो भी है डालें, प्रिपेयर करें। तो इसको अगर आप इसको रोकेंगे तभी रोक सकते हैं जब आप डक को तालाब में नहीं जाने दें। लेकिन अगर तालाब में नहीं जाने देंगे आप, तो फिर आपको दाने पे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो आपका एक तरह से वो ऑफ साइट इंटरेक्शन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जो एडवांटेज डक्स का पॉन्ड में मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। जी सर। थैंक यू सर। सर नमस्ते सर। जो भी अभी जो सांगली से जुड़े हुए जो फार्मर्स है हमारे 30 पार्टिसिपेंट, वो सब सर वहाँ पे जो वाटर रिसोर्सेस है वो प्लास्टिक लाइनर पॉन्ड है। सो प्लास्टिक लाइनर पॉन्ड में क्या हम इंटीग्रेटेड डक के साथ कर सकते हैं या कोई और ऑप्शन हम उनको दे सकते हैं? जो प्लास्टिक लाइन पॉन्ड है, देखिए प्लास्टिक लाइनर में क्या होता है, आप प्लास्टिक के ऊपर भी तो सॉइल की एक लेयर रखते हो। जी सर। रखते हैं ना? जी सर, जी सर। तो अगर वो सॉइल के को बाद अगर प्लास्टिक तक डक पहुंच जाएगी तो उस प्लास्टिक को चोंच से काट देगी जरूर। जी। और अगर उसने प्लास्टिक में छेद कर दिया डक ने, तो वो पर्पज आपका पूरा नहीं होगा जिसके लिए लाइनिंग आपने लगाया है। जी सर। ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिकी काम है कि आप जो लेयर प्लास्टिक के ऊपर रखते हैं वो कम से कम इतनी हो जिसमें डक उसको पियर्स करके प्लास्टिक तक नहीं पहुंच पाए। जी सर। ओनली देन इट कैन बी डन। थैंक यू सर। तो वो थोड़ा मोटा लेयर रखेंगे सॉइल का जो। और किसी का कोई प्रश्न है? हेलो सर, आई एम अंकिता। हाँ, अगर बोलो। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में अगर कोई बिगिनर हो तो वो फिश स्पेसिस कौन सी उसके लिए इजी है फार्मिंग करने के लिए? यही कार्प्स जो होती है, नॉर्मल कार्प्स, कतला, रोहू, मृगल, ग्रास, सिल्वर, कॉमन। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि इंटीग्रेशन में वही स्पीशीज ली जाएंगी जो नेचुरल फूड मटेरियल पे बेस हो जिनकी ग्रोथ। यस। तो ऐसी यही स्पीशीज है, यस सर। क्योंकि इसमें कोई कार्निवोरस फिश नहीं की जा सकती, क्योंकि कार्निवोरस फिश का तो कल्चर वो फीड बेस्ड है, आर्टिफिशियल फीड बेस्ड है। ओके सर। इवन तिलैपिया भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत सर मेरा एक क्वेश्चन था कि डक के साथ इंटीग्रेशन ज्यादा इकोनॉमिकल है या फिर पोल्ट्री के साथ? देखिए, डक एक एक्वेटिक बर्ड है और पोल्ट्री एक्वेटिक बर्ड नहीं है। तो डक का तो नेचुरल इंटीग्रेशन है पॉन्ड के साथ, ठीक है। तो डक में बीमारी वगैरह कम आती है क्योंकि वो खुद एक्वेटिक बर्ड है। पोल्ट्री को तो हमें जाना नहीं है उसमें। तो इसमें लगभग 2+ में आता है अगर आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखें तो दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन पोल्ट्री में एक फायदा जरूर है कि आप उसको बड़े साइज का लेते हैं तो एग्स आपको जल्दी मिलने शुरू होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये एडवांटेज जरूर है।
we can have the last question. अगर किसी का कोई last question है तो ले सकते हैं. So thank you so much, sir. थैंक यू. एक क्वेश्चन आ रहा है कि डक का लाइफ कितना रहता है. किसी फार्मर ने क्वेश्चन किया है. वो एक्चुअल में डक का लाइफ क्या है कि वो अभी ले में जो है लगभग 22 हफ्ते में के आसपास अंडा देना शुरू करती है और लगभग 300 दिन लगातार अंडा देती रहती है, जो अच्छी डक है, इंडियन रनर या इस तरह की जो. और जो दूसरी भी है वो भी लगभग 200 दिन 250 दिन तक अंडा देती है. उसके बाद दोबारा तीसरी बार में क्या है, उनका जो प्रोडक्शन है वो काफी कम हो जाता है, ग्रोथ भी कम होती है, तो इसलिए उनको कल कर देते हैं, बेच देते हैं मतलब उस समय. तो नॉर्मली 2 ले डक्स का लेके उसको सेल कर देना चाहिए. उसका फिर मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आता है, प्रोडक्शन कम होता है. Thank you so much, sir, for your valuable knowledge and experience. Thank A you. heartful thank you to you for coming as guest speaker. I would like to bring this session to the end. Thank you. I would like to thank R.S. Chauhan, sir. I'd like to thank all the participants, सभी किसान भाइयों को धन्यवाद कि सभी जुड़े रहे हमारे साथ पूरे सेशन के दौरान. I would like to thank my team members for facilitating this session. Everyone. Thank you.